Good morning, sixth class students. We are uh, moral science chapter doing. So this part is left now. I am going to start again from this part. As Malku neared the canal, he was turned to see that the waters had risen up to the burns of his fields. So जैसे उसने देखा he is near to the canal के पास क्या he has turned to see. He was surprised to see that the water is coming to the near to the fields. He ran swiftly, means very fastly. He swiftly means he ran very fastly along with the burns towards the gurgling sound which was now louder. The sound which is coming from that side, it is now going to louder and louder. So he went there to see what type of noise it is, and then to his horror he saw a gaping hole in the burnt where the water was gushing in from the swollen canal. So he has seen water. There is one very big hole, gaping hole, very big hole in his fields near the burnt, and the water is gushing up. Water is coming up very fast way. He stood there numbed and shocked. He was very shocked, and he stood there in a shock and see what is going on. If the beach was not blocked, he think that if the beach is breached, this hole is not blocked, then the water could inundate. Inundate means the water will come very fast way to his fields. Entire water, the indent means inundate means entire water will come into the field and its top would droop down and all the fields will be going down. सारी फसलें नीचे गिर जाएंगी and the entire crop would be destroyed and this crops, ये फसलें सारी बर्बाद हो जाएंगी. He was thinking that Malku knew that he had to act and act quickly. उसको लग रहा था कि अब उससे जल्दी से जल्दी कुछ करना पड़ेगा. He needed to help but the villagers were away at wedding. उसको help चाहिए थी लोगों की but सब लोग कहाँ पे गए हुए थे? All went to the wedding, marriage पे गए हुए थे. If he ran up to 3 old miles to the nearest Sulai's gate, it would be too late. अगर वो गेट के पास जाके उन लोगों को लेने के लिए जाता तो भी बहुत लेट होना था. He frantically means fastly began to shovel soil and gravel into the widening hole. He is trying. उसने एक टूल लिया. shovel means एक टूल लिया जो जिससे मिट्टी खोदते हैं, ठीक है. He took that one and tried to gravel means उसको कवर करने की कोशिश की होल को. He worked with his hand and feet, putting everything he could lay his hands and trying to stem the powerful torrent. So उसने ट्राई किया कि अपने हाथों से पैरों से जिस तरह से भी कोशिश कर सकता था. He is trying to stem means cover the powerful flow of the water. He was sweating profusely means very badly. He is now sweating means वो पसीने से भर गया. Before he finally closed the breach, putting the last big stone in place. और तब तक वो काम उसको भरने में लगा ही रहा जब तक वो उसने फाइनली एक बड़ा सा पत्थर नहीं रख दिया उस पानी को रोकने के लिए. मलकू फेल्ट दिस द फीवर राइज अप सो ऑलरेडी ही इज हैविंग फीवर. उसका बुखार और बढ़ने लग गया. ही वॉज नाउ शिवरिंग मीन्स कांपना. वो कांपने लग गया. ही न्यू दैट द ब्रीच हैड नॉट बीन रिपेयर्ड प्रॉपरली एंड द फोर्स ऑफ वाटर कुड स्वीप द पैच वॉक any moment. What he needed was a bigger stronger barricade. He had none. तो उसको पता था कि पानी अभी थोड़ी देर में फिर से पत्थर हट जाएगा और पानी फिर से गिर जाएगा. उसको एक बड़ा सा बैरिकेड चाहिए पर उसके पास कुछ नहीं था. Then he watched the breach intently. वो एकदम से ब्रीच को उसने देखा एकदम से. क्या हुआ? स्मॉल स्ट्रीम ऑफ वाटर स्टर्ब्ड थ्रू. एक छोटी सी पानी की बहाव फिर से अंदर आने की कोशिश करने लगा. मलकू डिड नॉट हेजिटेट फॉर ए मोमेंट. वो एकदम से भी घबराया नहीं. ही ले डाउन ऑन द ब्रीच एंड प्रेस्ड हिज बॉडी अगेंस्ट द प्रेस्ड ब्रीच. उसने अपने आप को उसके आगे लिटा दिया और उस होल को बंद करने के लिए खुद उसके आगे लेट गया. विद ऑल हिज स्ट्रेंथ, पूरी अपनी पावर के साथ द टॉरेंट स्टॉप. और तभी वो पानी का बहाव रुक गया. मोमेंट स्लिप्ड इनटू मिनट्स एंड मिनट्स इनटू आवर्स. तो पहले थोड़े मिनटों के लिए वो लेटा हुआ था, मिनट्स के बाद घंटे हो गए वो लेटा ही रह गया. ही शिवर्ड मोर वायलेंटली नाउ द फीवर बर्नड हिज बॉडी. तो बहुत बुरी तरह से कांपने लग गया और उसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा शिवर मीन्स उसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा बुखार हो गया. बहुत उसकी बॉडी बर्न हो गई, गर्म होने लगी. ही हैड नो मीन्स टू नो दैट waters had receded in the canal and that the breach was much above the water level now. It was almost dawn now. मलकू फेल्ट एस डीप स्लम्बर एनगल्फ हिम. और वो पानी फिर उसको इतना भी होश नहीं रहा कि पानी अब डाउन हो गया है, पानी अब नीचे बैठ गया है और अब कैनाल से पानी लेवल लो हो गया. फिर भी वो लेटा ही रहा और वो मलकू वॉज डीप स्लम्बर एनगल्फ हिम. स्लम्बर मीन्स वो गहरी नींद में सो गया. ही अ फ्यू ऑफ जमींदार मैन केम अलॉन्ग शॉर्टली आफ्टर. थोड़ी देर में जमींदार के कुछ लोग आए. दे टुक अराउंड द लुक द फॉर मलकू. उन्होंने मलकू को देखा. दे शाउटेड हिज नेम. उसने उनका नाम उसने चिल्लाया जोर से. बिरेटिंग
कंप्लेटिंग मीन्स स्कोल्डिंग हिम फॉर हिज नेग्लिजेंस, उनकी केयरलेसनेस, उसको लगा कि कितना केयरलेस है, आराम से सो रहा है, लिविंग द फील्ड अनगार्डेड, और खेतों की तरफ देख ही नहीं रहा। द फेलो मस्ट हैड हिज फिल ऑफ टॉडी एंड स्लेप्ट ऑफ समवेयर, कहते ये लगता है ड्रंक करके सो गया है। वन मैन सेड आई विल थ्रैश हिम व्हेन आई विल फाइंड हिम, जैसे ये उठेगा ना मैं इसको डंडे से पिटाई करूंगा। मलकू वॉज फाउंड लेटर, मलकू वॉज फाउंड लेटर हिज बॉडी हैड गॉन रिजिड इन द डेथ, बाद में पता चला कि मलकू अब मर चुका है। स्टिल ही हग द ब्रिज फैमिली, फिर भी उसने उस पानी को रोकने के लिए तब भी वो ऐसे का वैसे ही लेटा रहा। द वीट फील्ड वॉज सेड, खेत तो बच गए, बट द मलकू हैड डाइड सेविंग द लेबर्स ऑफ सो मैनी मैन, मलकू मर गया और उसने कितने लोगों के काम एक अकेले नहीं कर दिया। एंड हु हैड टॉयल्ड, 12 means did hard work the whole year long, he had not breached the trust respond him, उसको जो विश्वास उसके ज़मींदार ने उस पर किया था उसने उस विश्वास को तोड़ा नहीं। फिर भी ज़मींदार ने उसके बारे में क्या कहा, स्टूपिड ऑफ हिम ही टू गॉट हैव गॉटन सो ड्रंक, कितना स्टूपिड है, इतना इसको ड्रंक करने की क्या ज़रूरत थी। द पुअर फेलो मस्ट हैव डोज्ड ऑफ इन टू द ड्रंकन डेज एंड कॉट द चिल, ये पुअर मैन कहते हैं ये बेचारा आदमी ऐसे ही ड्रंक करके खेतों में सो गया होगा और ठंड में मर गया। मोन्ड द जमींदार, मोन्ड मीन्स उसने एकदम से अफसोस करते हुए कहा बेचारा मर गया। व्हाट अ वे टू डाई, ये क्या तरीका हुआ मरने का। ही साइड, उसने फुसफुसाया। पफिंग ऑन हिज ऑर्नेट हुक्का, उसका जो हुक्का था उसको गड़गड़ाते हुए ऐसे उसके बारे में बोल रहा था। मलकूज एग्जाम्पलरी सेंस ऑफ ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मेड हिम सेक्रीफाइस हिज लाइफ वेंट अननोटिस्ड एंड अनसंग, और मलकू ने जो खेतों को बचाने के लिए ड्यूटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी की उसको तो किसी ने देखा ही नहीं, वो ऐसे ही बिना देखे ही रह गई। हिज लेजेंड, उसकी जो महान काम था पर ये, हाउएवर स्टिल लिव्स ऑन, फिर भी उसने जो काम किया वो हमेशा याद रखा जाएगा। So this is the story about Malku. Read this story once again and try to understand, try to solve its exercises. I will send the answers later on. Thank you students.